प्यारे विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारे भरी सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो चैनल JS मैथ क्लासेस डियर स्टूडेंट्स और ਆਪਾਂ कर रहे ਹੈਗੇ ਆ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੈਥ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 7 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ और दोनों के लिंक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च, ठीक है। और पहला वो जरूर देखो ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिस्टेंस फार्मूले बारे पता लग सके। सैकेंड अपने को है विभाजन सूत्र ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ करना है वो है विभाजन सूत्र यानी कि सैक्शन फार्मूला, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਤੇ ਵਾਈ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਸੀ x1 ਤੇ y1, B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਹੈਗੇ x2 ਤੇ y2। ਤਾਂ P ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆਪਾਂ ਨੇ x, y ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ। ਇੱਧਰ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ m/n ਹੈ। ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ x, y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो मान लो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ m/n ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ m ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੈ n ਹਿੱਸਾ ਹੈ, m/n ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ m/n ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ px, y ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ px, y ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ x ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ। ਤਾਂ x ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ x ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, y ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ m ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ b ਦੇ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, mx2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਉਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। n ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ, nx1 ਆ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ m+n ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ x, ਕੌਮਾ। ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ y। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ y ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ y ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਆ। m ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰਲਾ y ਵਾਲਾ, y2, ਫਿਰ n ਨਾਲ ਇੱਧਰਲਾ y ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਆ, ਉਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ m ਤੇ n ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.2 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ। ਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਅਨੁਪਾਤ ਫਿਰ 1:1 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੇ x ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, x1 + x2/2, ਠੀਕ ਹੈ। x1 + x2/2 ਤੇ ਜੋ y ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ y ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ
ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਡਿਵਾਈਡਸ ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ए ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ -17, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4:-3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ 2:3, ਯਾਨੀ m ਤੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2:3 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ x y ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ? Px, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ m ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਵਾਲੇ m ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ 4 ਪਲੱਸ 3 ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ x ਵਾਲੇ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ, 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਜੋੜ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x, ਕੋਮਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ y ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, y ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ y ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, m ਨਾਲ ਇੱਧਰਲਾ y ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ -3 ਪਲੱਸ n ਨਾਲ ਇੱਧਰਲਾ y ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ 7। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? m ਇੰਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, n ਇੰਟੂ, ਪਹਿਲਾਂ x ਲਿਖੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ y ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ 2 + 3, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ x ਆ ਜਾਏਗਾ, y ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਦੂਣੀ 8 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 - 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 + 3 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 3 -6, 3 7 21 ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 28 3 ਕੱਢੇ 5/5, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 21 6 ਕੱਢੇ 15/5। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ 5 3 15 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1,3 ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਂਸਰ ਆਫ Px, y, ਯਾਨੀ P ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 1 ਇੰਟੂ 1,3 ਇੰਟੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, 1,3। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ, ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਰਡ ਇੱਥੇ? ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ, ਬਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 4 1 ਤੇ 2 3। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ? ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 -1 ਐਂਡ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ -2 -3। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ A ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ B ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। 3 ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਲਓ ਇਕੁਅਲ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਨਗੇ ਨਿਊ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ P ਪੁਆਇੰਟ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ Q ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, x, y P ਦੇ ਤੇ x, y Q ਦੇ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਪਾਰਟ, 1 2 3 ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 1 ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ? 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟ, ਸੇਮ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 1, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 1 ਐਂਡ 2। ਤਾਂ 1:2 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ,
एक मैं तुहानूं पार्ट सॉल्व कर देना, सैकेंड तुसीं अपने आप सॉल्व करिएगा। मैं पी दे फाइंड करते हैं एक्स कॉमा वाई। तो पी दे एक्स कॉमा वाई फाइंड करने वेले की आएगा अपने कोल फॉर्मूला वही, हाँ जी 1:2 इधरला एक्स, एक नूं -2 नाल गुणा करांगे आपां, ठीक है जी, प्लस 2 नूं इधरले एक्स यानी कि 4 नाल गुणा करांगे आपां, नीचे आएगा 1 + 2, ये हो गया एक्स। फिर वाई 1 नूं इधरले वाई यानी कि -3 नाल गुणा करांगे आपां, प्लस 2 नूं इधरले वाई यानी कि -1 नाल गुणा करांगे आपां, नीचे आएगा अपने कोले 1 + 2, ठीक है जी। इस तरह आप सॉल्व करते जाना है। 1:2 -2 हो गया, 2 4 8 हो गए, नीचे हो गया 1 + 2 3, -3 हो गया, ठीक है, ये हो गया -2, तो नीचे हो गया 3। सॉल्व करके अपने को की बचा है 8 2 कटे 6, 6/3 कितना रह गया 2, -3 ते -2 कितना बन गया -5/3। तो ये वाला पॉइंट अपने को आ गया पी। तो पी के कोआर्डीनेट्स की आ गए 2, -5/3। इस तरह ही तुसीं हुण जिहड़ा क्यू ते रेशो कितनी बन जाएगी, रेशो चैक करनी है। हुण देखो इधरले पासे कितने पार्ट्स हो गए 1 and 1 2, इधरले पासे 2 पार्ट्स हो गए, इधर कितना रह गया 1, तो इत्थों रेशो कितनी लवांगे 2:1 लवांगे आपां। सिमिलरली तुसीं क्यू पॉइंट जिहड़ा हैगा फाइंड करना अपने आप। क्लीयर है ना? आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दस्सो भी की आंसर आया था। देखते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है अपने कोल 3। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ क्वेश्चन देख के डर ना जाओ, है ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड हैगा, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो 1 मीटर के डिस्टेंस से लाइनां लगाई गई जिहदे विच दौड़ना तुसीं, ठीक है। तो 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेसड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग एडी लाइन ते की हैगा 1 मीटर के डिस्टेंस से फ्लावर पॉट्स रखे गए है, किन्ने है 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए। इत्थे भी डिस्टेंस कितना है 1 मीटर से है, ठीक है भी 1 मीटर नहीं है। तो एज शोन इन फिगर, निहारिका रनस 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, ठीक है। निहारिका कित्थे पहुंची हुई है, निहारिका ने 1/4 ऑफ द एडी कवर कर लिया। 1/4 टोटल किन्ने सी इत्थे फ्लावर पॉट्स 100, ठीक है। 100 का 1/4 कितना बनेगा, चौथा हिस्सा कितना बनेगा दसो, कितना बनेगा 25 बनेगा ना। इट मीनस जिथे निहारिका खड़ी है, निहारिका ने कितना कवर कर लिया है, इत्थे उन्हें इधर नूं किन्ने कवर कर लिया 25। तो किहड़ी लाइन चल रही हैगी है ऑन द सैकेंड लाइन। जिवें आपां जदों देखते हैं पढ़, इत्थे एक्स एक्सिस हुंदा, इत्थे वाई एक्सिस हुंदा ना अपने कोले। एक्स वाली किन्नी लाइन हैगी इत्थे 2, इट मीनस 2, इत्थे हो गया 2 पॉइंट, एक्स हो गया 2 और वाई कितना हो गया 1/4 ऑफ 100 25, चौथा हिस्सा कितना बन गया 25। तो इत्थे चल रही है निहारिका। अगे है पोस्ट से ग्रीन फ्लैग, ये को ग्रीन कलर का फ्लैग है, ठीक है, ठीक है। तो नाल दी नाल की है प्रीत रनस की है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, 1/5 ऑफ डिस्टेंस 100 का 5वां हिस्सा कितना बनूगा 20, ठीक है जी। उत्थे वाई कितना होगा 20 हो जाएगा अपने को। एंड ऑन द 8th लाइन ऑफ एंड पोस्ट से रेड फ्लैग, ठीक है कि नहीं। तो 8वीं लाइन के जा रही हैगी, वो 8वीं लाइन के की है अपने कोल इत्थे जा रही हैगी है, और इन्हें कितना हिस्सा कवर कर लिया 20 पॉट्स कवर कर लिया। एक्स 8 हो गया तो वाई कितना हो गया 20 पॉइंट बन गया 8,20, ठीक है जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लग गया ना पता, तुहानूं किस तरह आप मोल्ड कर लिया। तो करना की है, वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स। तो यह ग्रीन फ्लैग है तो रेड फ्लैग है, इन्होंने विचाले डिस्टेंस कितना है अपना ये फाइंड करना, ठीक है। वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला तुहानूं लाउणा आउंदा हैगा, दूरी सूत्र पिछे आप सीखिया, तुसीं दूरी सूत्र ला देना सिंपली, ये डिस्टेंस आ जाएगा। फिर पता करना है फ्रशमी हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सैगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। तो बिल्कुल जी लाइन आप खिंची है, बिल्कुल सेंटर से जो उन्हें फ्लैग लाना हो तो किहड़े पॉइंट पर फ्लैग लावे, पॉइंट फाइंड करना अपने, मतलब यदा की फाइंड करना आप, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सैगमेंट, यानी कि मध्य बिंदु वाला फार्मूला आप लावांगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला आप की कीता सीगा, x1 दोनों x वाले जोड़ लो, दोनों y वाले जोड़ लो, हद कर दो, सिंपल फार्मूला सीगा। तो यदा कितना आ जाएगा अपने को x वाले जोड़ के 8 ते 2 10 बन जाएंगे, 10 10 कितना बन गया 5, ठीक है। इत्थे 25 ते अपने है 20, 45 का हाफ कितना बन जाएगा 22.5। तो 5,22 ते जिहड़ा पॉइंट अपने को लगेगा, मतलब 22वें ते 23वें गमले के विचाले जाएगी वो इधरों, तो 5th लेन च जाएगी वो, तां करके बिल्कुल सेंटर से फ्लैग ला सकती है। फ्लैग किहड़ा लाऊगी वो ब्लू कलर का फ्लैग लाना उन्हें, ठीक है। इत्थे समझ लग गई कि नहीं क्वेश्चन की, मतलब अप्लाई उस तरह ही करना हैगा।
एक तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना, पहला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना सी। ठीक है, ये बड़ा सारा क्वेश्चन इन्ना सौखा सीगा, देख लो प्रैक्टिकल बनाया हुआ इनू। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते नैक्सट, दैट इज़ फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सैगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। हुण देखो क्वेश्चन की डिफरेंट है, रेशो फाइंड करनी है आप की फाइंड करनी है रेशो, तो आप वंडन वाला जो पॉइंट से गिवन है कि है -16। लेट्स सी किस तरह है क्वेश्चन अपने कोल। हाँ जी, क्वेश्चन है अपने कोल क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे अपने को पॉइंट्स गिवन है एंड पॉइंट्स दीज आर -3 एंड 10 एंड अगला पॉइंट है दैट इज़ 6 एंड -8। तो इनू जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है P, वो कोआर्डीनेट्स है -1 एंड 6 गिवन है। वी हैव टू फाइंड दिस रेशो। रेशो नहीं पता अपन कितनी, ठीक है, रेशो फाइंड करनी है। तो जो रेशो फाइंड करनी हो उदों किस तरह सवाल करना है, न्यू सम है, ध्यान नाल सीखना है। जो आपने रेशो फाइंड करनी हो रेशो लैट कर लो, लैट रिक्वायर्ड रेशो की लेनी है रेशो K:1, K:1। तो आह वाली रेशो आप मन लैनी होंगी, ठीक है। मन लिया कि रेशो कितनी अनुपात कितना है, K अनुपात 1 है इस पॉइंट पर। K अनुपात आप 1 लिख लिया इतने, K अनुपात 1 लिख के जिवें आप सैक्शन फार्मूला लाते सी ला दो इतने, ठीक है। बाय सैक्शन फार्मूला की आएगा अपने को, अपलाई कर दो सैक्शन फार्मूला की होंगे सी। आह वाला पॉइंट आप अगे लिखते होंगे P -1 × 6 इज़ इक्वल टू, हाँ जी इधर अपलाई करा K नूं इधरले X ना गुणा K गुणा 6, तो इधर आएगा अपने को +6 गुणा -3, 6 गुणा इधरले X ना गुणा, तो K नूं 6 ना गुणा करांगे आप, 1 नूं -3 ना गुणा करांगे, ठीक है। आप समझ लग गई ना, K नूं 6 ना गुणा, 1 नूं -3 ना गुणा, K गुणा 6 1 गुणा -3, 1 गुणा -3 तो बटे कितना आएगा अपने को K +1। इकला X वाला आ गया, वैसे अपने भी सर सकता है, वाई वाला तुम कढ़ना तो कढ़ लो, जरूरत नहीं है, तुम एक नाल भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इतने वाई वाला लिख लो एक बारी, चलो वाई वाला की बनेगा K गुणा इधरला वाई यानी कि -8K, 1 गुणा इधरला वाई यानी कि 10 बन गया, नीचे आएगा K +1। तो इतने थोड़ा एक ही हल कर लो जो मर्जी, तुम अपने वाई वाला कोआर्डीनेट्स ला लो। चलो वाई इतने 6 है, इतने आ वाई वाला कोआर्डीनेट भी वाई है, दोनों बराबर रख लो। कि लिखेंगे आप इतने इक्वेटिंग वाई कोआर्डीनेट्स, वाई कोआर्डीनेट जरूरी नहीं वाई वाले आप लैने हैं, तुम एक्स वाले भी लै सकते हैं, पर उत्ते उही लिखना है भी तुम लेना है एक्स के निर्देशांक बराबर रखने से। इतने सीगा 6, इधर सीगा वाला -8K + 10 बटे है अपने को K +1, तिरछी गुणा कर दो, इतने समीकरण बन गई तुहाडे कोले। इधर बन जाएगा 6K + 6 × 6, इधर बन जाएगा -8K + 10। K वाली रकम एक पासे ले जाओ, बाकी हल कर लो, ठीक है। इधर ले आओ 6K + 8K हो गया इतने, इधर बन गया 10 -6, ये बन गया 8 ते 6 14K, 10 चो 6 कटे कितने रह गए अपने को भी 4, K का मुल कितना आ गया 4/14, इनू कट दो, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो K = कितना आ गया 2/7। K का मुल कितना आ गया 2/7। तो आप मन्निया सी कि अनुपात कितना है, K अनुपात 1 है, तो अपना रेशो कितनी आ जाएगी। सो रेशो = कितना आ जाएगा 2:7। रिक्वायर्ड अनुपात कितना आ गया अपने को 2:7 बन जाएगा, जिस अनुपात में बिंदु इन्हों वंडता है। समझ लग गई ना। इंपोर्टेंट सवाल ये कोई भी सवाल होता तो इस तरह करना, अनुपात जो कढ़ना हो तो K अनुपात 1 लैके ही कढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, सो देखते नैक्सट क्वेश्चन पुत्र जी, आप वीडियो लाइक कर लो पुत्र जी। हाँ जी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो पुत्र फटाफट, की कहता फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सैगमेंट जॉइनिंग A एंड B पॉइंट गिवन है, दोनों ज्वाइन करती एक लाइन है इज डिवाइडेड बाय द X एक्सिस। इतने डिवाइड बाय अपन 16 गिवन से, इतने गिवन क्या करता X एक्सिस डिवाइड करता, ठीक है। तो X एक्सिस डिवाइड करता है, तो आपने सेम X एक्सिस वाला फार्मूला जोड़ा है अपन पता सीखा होया। आ पॉइंट्स गिवन है अपन तो अपन पता कि X धुरे के निर्देशांक की होंगे अपने कोले, ठीक है। जोड़ा कोई पॉइंट X धुरे पर होवे उहदे निर्देशांक की होंगे X,0 टाइप के होंगे, मतलब Y वाला पॉइंट 0 होंगे उत्ते, ठीक है। तो आपने X,0 X की वैल्यू फाइंड करनी कितनी है, ये वाला पॉइंट कितना है, आ तो 0 ही है ना, यानी X ही फाइंड करना है। P अपन गिवन है X,0 इत्थे,
रेशो भी फाइंड करनी है, पर रेशो फिर जो फाइंड करनी तो कि रेशो आप लेने होंगे हमने आप करके हटे सवाल के अनुपात 1 यानी कि K/1 आप लेने होंगे। ठीक है, मनना है पहला आप मन लिया के अनुपात कितना है, के अनुपात 1 है तो के का मुल कढ़ना है। ठीक है, आप इतने तो इस तरह आएगा सेम फॉर्मूला विभाजन सूत्र आप लावे, सैक्शन फॉर्मूला लावे की सी वो इतने लिखेंगे Px, 0 इज इक्वल टू हाँ जी के -4 नाल गुणा। ठीक है जी, फिर आप लावे +1 नूं 1 नाल गुणा तो इधर आ जाएगा अपने को K+1 ये आ गया एक्स वाला। फिर वाई वाला भी लिख के रख लो एक बार इतने तुसीं। वाई वाला की बनेगा देखो ध्यान नाल, वाई वाले K गुणा 5 K बन गया, 1 नूं -5 ना किया तो -5 ही बन गया। ठीक है, नीचे बन गया K+1 जी, इतने ब्रैकेट पा दिया करनी अपने। सेम ये एक्स वाला बन गया पॉइंट, ये बन गया वाई वाला पॉइंट। हुण इत्थे देखो एक्स वाला तो आपको पता नहीं पॉइंट एक्स दिता होया, तो वाई वाला तो पता है ना 0 है, तो इत्थे आप वाई वाला ही लेना, पॉइंट एक्स वाला नहीं लेना इत्थे। ठीक है, इत्थे अगे दोनों पॉइंट पता सी कि आपको ये पता है 0 है, तो आप सिर्फ वाई वाला पॉइंट ही लवांगे। कि लिखेंगे आप इत्थे इक्वेटिंग या लिखेंगे वाई निर्देशांक बराबर रखण ते की बनेगा अपने इधर होएगा 0, इधर की है 5K -5 बटे K+1। फिर सॉल्व करके तुम के का मुल जो कढ़ सकते हैं अपने आप। ठीक है, नैक्सट तुम आपे सॉल्व करना है के का मुल कढ़ के मैंने कमेंट बॉक्स दस्यो। ठीक है, कितना आ गया। नैक्सट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 अपना। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज़ क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की कहता है अपने को 6 सॉरी कहता इफ 1 2 4y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होंगी एक समांतर चतुर्भुज की होंगी है समांतर चतुर्भुज दियाँ ये शिखर है टेकन इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में लैने है आप। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई, तो एक्स तो वाई का मुल पता करना अपने किस तरह है। अपने को सवाल ये कहता है एक अपने को पैरेललोग्राम है तो चारे की है पैरेललोग्राम के शिखर है वर्टिसेस है, ऑर्डर यही रहना चाहिए। मान लो आप ए पॉइंट ये लिखा तो पहला ये आएगा 1 2। ठीक है, बी पॉइंट आप लिखा बी सैकेंड ही आएगा 4:y, सी पॉइंट आएगा अपने को x,6 तो डी पॉइंट आएगा 3,5। ठीक है जी, इस तरह अपना पैरेललोग्राम गिवन हैगी है। वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, तो एक्स ते वाई दी वैल्यूज़ फाइंड करनी अपने। वो वास्ते छोटा जिहा फॉर्मूला तुहानूं होना चाहिए है कि है इसदा सोल्यूशन। एक्स ते वाई दी वैल्यू आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, देखो तो ये जो डायगनल्स होंगे देखो ध्यान नाल, डायगनल आप बनाइए दे विकर्ण दोनों बनाते आप। ये पहला विकर्ण बन गया, दूजा विकर्ण बन गया। तो इत्थे प्रॉपर्टी एक यूज़ करनी आप कि समांतर चतुर्भुज जी होंगी है या पैरेललोग्राम जी है, डायगनल की एक दूजे को बाइसैक्ट करते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, मतलब यदा मिड पॉइंट भी यही बनता, यदा मिड पॉइंट भी यही बनता है। फिर इस पॉइंट आप ले लिया, मान लो P पॉइंट ले लिया, दैन P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस। सिंस आप लिखेंगे इतने डायगनल्स, डायगनल मतलब विकर्ण, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट सेक्शन। ठीक है, पैरेललोग्राम बाइसैक्ट ईच अदर, बाइसैक्ट ईच अदर मतलब एक दूजे की करते हैं, बाइसैक्ट मतलब समदुभाजित करते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूजे को समदुभाजित करते हैं। इसलिए यदा मध्य बिंदु भी वही बनता है, यदा मध्य बिंदु भी वही बनता है। इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। भी BD का मध्य बिंदु तो AC का मध्य बिंदु एको ही बनता, दोनों बराबर है। तो दोनों बस मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दें आप। मध्य बिंदु का फार्मूला कितना सौखा सीगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ की सीगा AC पॉइंट लेना आप। तो AC के पहला एक्स वाले जोड़ लो, फिर वाई वाले जोड़ लो। पहला एक्स वाले की है, इतने 1 है, इतने एक्स है, तो 1 + x जोड़ के अद्ध करना होंगे आप। ठीक है, फिर वाई 2 + 6, 2 + 6/2 ये बन गया AC का मिड पॉइंट। इधर आ जाओ मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट इधर आ जाओ B तो D पॉइंट आप लवेंगे। पहला एक्स वाले 4 ते 3 बन गए 7/2, फिर बन गया 5 ते y, 5 + y/2। किहड़ा फार्मूला अप्लाई किया आप, मिड पॉइंट फार्मूला दोनों ते AC ते भी तो BD ते भी अप्लाई करता, दोनों पासे बराबर रख ले। हाँ जी, तो इत्थों बन गया एक्स नूं एक्स वाले के बराबर रख लो, वाई वाले नूं वाई वाले के बराबर रख लो। ठीक है जी, इत्थों है एक्स वाला 1 + x/2, इधरों एक्स वाला किहड़ा सीगा 4 3 7/2।
ठीक है जी। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ y ਵਾਲਾ 6 2 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 8/2 ਤੇ ਇਧਰੋਂ y ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 5 ਜਮਾ y/2। x ਵਾਲੇ ਨੂੰ x ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, y ਵਾਲੇ ਨੂੰ y ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 7 ਜਾਂ ਕੱਢੇ 6, x = 6 ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਧਰੋਂ y ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ 2 ਨਾਲ 2 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 8 'ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਈ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, तो y = 3 हो गया। इतने भी अपने को x = 6 एंड y = 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। क्लीयर हो गया ना, समझ लग गई ना मित्र किस तरह क्वेश्चन जो है आप समझना है, बस ये जरूरी है प्रॉपर्टी कि यूज़ करनी है आप। सो बेसिक्स क्लीयर होने बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पैस के भी अक्सर पूछा जा सकता है भी ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये प्रॉपर्टीज तुहानूं हमेशा आनी चाहिए। देखते हैं आप अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लो पुत्र फटाफट। फाइंड द कोआर्डीनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल की गल की इत्थे डायमीटर की व्यास, चक्कर का व्यास है ए बी, ठीक है। हुज सेंटर इज़, सेंटर मतलब वह केंद्र, केंद्र बिंदु के निर्देशांक आप दिते हुए ध्यान नाल पढ़ना, ये एंड पॉइंट्स नहीं है, केंद्र बिंदु सेंटर के है 2:-3 एंड बी के है 1 and 4, ठीक है। आप ए दे फाइंड करने भी ए दे कितने होंगे, क्योंकि एट दिस किदा अपने को इस तरह एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल है अपने को, सर्कल के विच ए ते बी दोनों एंड पॉइंट्स है, डायमीटर ए भी है, व्यास है चक्कर का, व्यास के विच केंद्र के निर्देशांक आप दिते हुए है तो बी के निर्देशांक दिते हुए आप ए के निर्देशांक पता करने। तो इतने छोटी जी प्रॉपर्टी तुहानूं ध्यान होनी चाहिए कि जिहड़ा चक्कर का केंद्र हुंदा हैगा बिल्कुल सेंटर च हुंदा हैगा, उत्थों जिहड़ा अर्ध व्यास इधर नूं भी उन्ना ही हुंदा, इधर नूं भी उन्ना ही हुंदा है ना, इक्वल हुंदा ना। इट मीनस पी जिहड़ा की है मिड पॉइंट ही बन जाता है, बराबर हुंदा ना। तो ये मध्य बिंदु बन गया, तो मध्य बिंदु का फार्मूला तुसीं अप्लाई कर देना है, सेम तुहाडे कोल इहदा आंसर आ जाएगा। किहड़ा फार्मूला यूज करना इत्थे तुसीं, मिड पॉइंट फार्मूला तुसीं अपने आप इत्थे यूज करना, ठीक है। फार्मूला तुसीं और इहदा मैनूं आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स कमेंट करियो भी किस तरह आया, ठीक है। समझ लग गई ना। मिड पॉइंट यानी कि एक्स वाले पहले जोड़ लेने, x + 1/2 = 2 रख देना, फिर y + 4/2 = -3 रख देना, तो x का मुल आ जाएगा, एक पासों y का मुल आ जाएगा। क्लीयर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप नैक्सट की कहता आप क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ ए एंड बी आर -2 2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। समझ लग गई। तो इन्हों आप देखते हैं फ्रेम करते हैं क्वेश्चन की गिवन है। हाँ जी देखो इतने भी अपने को गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, तो पी कोई वैसे लाइन सैगमेंट से कोई पॉइंट है वा, तो गिवन है अपने को AP is equal to 3/7 into AB। तो डायरैक्ट इतने कोई रेशो नहीं गिवन दी गई, अपने रेशो फाइंड करनी है, तो एक्चुअली रेशो ही है। उसी को थोड़ा सॉल्व करके देखोगे, बन गया अपने को AP AB नाल डिवाइड कर दो, इधर आके AB नीचे आ गया, इधर आ गया 3/7। नहीं रेशो कि गिवन हैगी आ, AP की रेशो पूरे AB नाल गिवन हैगी आ, पूरे AB नाल, मतलब जो AP अपना 3 यूनिट हैगा तो AB कितना है 7 यूनिट बनता, कोई भी यूनिट आप ला लीए। तो आप जो हम देखा सी विभाजन सूत्र किया, वो रेशो आपको कि चाहिए होंगी हैगी आ, दिस इज़ टू दिस, मतलब यदा तो यदा अनुपात चाहिए होंगे भी इधर कितना हिस्सा है तो इधर कितना हिस्सा है, वो अलग अलग चाहिए होंगे, फिर आप विभाजन सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पता करने वास्ते आप देखते हैं, तुम क्लीयर ही पिया इतने जे AP अपने को उन्हें 3 यूनिट्स लिखा, ठीक है, तो AB लिखा उन्हें 7 यूनिट्स, तो PB कितना रहेगा दसो भी, PB कितना होएगा अपने को 4 यूनिट्स। रेशो रिक्वायर्ड रेशो इतों फिर अपने रेशो लैनी हैगी है AP तो PB की रेशो लैनी है, AP तो PB की रेशो कितनी आएगी, AP 3 यूनिट्स है तो PB कितना बन जाएगा अपने को 4 यूनिट्स। क्लीयर हो गया ना। 4 किमें आया ये सारा 7 यूनिट आप जो मन लीए 7 इकाइयाँ, तो ये जो अपने को 3 यूनिट्स है रेशो के, तो वो रेशो कितनी रहेगी अपने को 4 रेशो रहेगी, ठीक है। नाल अपन ये के ले सकते हैं, क्योंकि ये रेशो गिवन हैगी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, की है ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इतने के ना के कैंसल कर दोगे तो रेशो कितनी आ जाएगी अपने को 3:4, तो रिक्वायर्ड रेशो 3:4 लैके आप P के कोआर्डीनेट्स फाइंड करने हैं। क्लीयर हो गया ना। गां सवाल थोड़ा सेम ही है, तुम सिंपली की करना है, तो 3:7 नहीं लेना रेशो, 3:4 लैनी हैगी, अगे तुम की करना है, तो सैक्शन फार्मूला जोड़ा अप्लाई कर देना है
ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अपने को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इनटू इक्वल 4 पार्ट्स। ए पॉइंट तो गिवन है इत्थे, ए पॉइंट इज गिवन -2 2, ठीक है। बी पॉइंट तो गिवन है हेयर 2 and 8। तो लाइन सैगमेंट है अपने को ए तो बी में ज्वाइन करता हुआ, ठीक है, ए तो बी में ज्वाइन करता हुआ लाइन सैगमेंट है। तो इनू इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इक्वल 4 पार्ट्स वेरी ईजी। देखो इक्वल क्या होने, पहला आप बिल्कुल मिड पॉइंट ले लेने, पी पॉइंट ले लें, ठीक है। 2 पार्ट्स तो बन गए ना, पहले ये फाइंड कर लो पॉइंट्स, तुम एक्स वाई फाइंड करने हैं। हाँ जी, पी दसो जी, मिड पॉइंट बन गया ना, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देने आप सिंपली। की सीगा पी एक्स कमा वाई कितना आएगा, फटाफट दसो भी मिड पॉइंट फार्मूले अकॉर्डिंगली की सीगा x1 + x2। की करते सी आपां दोनों एक्स वाले जोड़ के उसदा अद्ध, फिर वाई वाले जोड़ के उसदा अद्ध करते सी आपां y1 + y2/2। ये स्टार्टिंग दे विच फार्मूला आपां कीता होया, ठीक है। देख लो पिछे जाके भला तुसीं फार्मूला अप्लाई कर दो, यानी कि पहला दोनों एक्स वाले जोड़ने आपां। एक्स वाला इत्थे की आ -2 ते इत्थे एक्स वाला की आ +2 / 2, फिर y, फिर दोनों y वाले जोड़ लो, कितना बन जाएगा 2 + 8 / 2। समझ लग गई। इन्हों सॉल्व कर लो, कितना आ गया भी ये 2 - 2 0 ही बन गया, 0/2 0 ही आ गया। 8 ते 2 10, 10 10 कितना कितना बन गया 5। तो पी के पॉइंट कितने बन गए 0,5, एक तो हो गया। फिर इन्हों 4 पार्ट्स डिवाइड करना कि आप हुण आप नैक्सट पार्ट देखते हैं। नैक्सट पार्ट की किया आप पहले पोर्शन में ये वाला पॉइंट तुहानूं पता लग गया पी कितना आ गया, पी आ गया 0,5, ठीक है जी। पी पॉइंट आ गया। हुण तुसीं फाइंड करना इनू भी, ये 2 पार्ट्स करते, इत्थे पॉइंट आप क्यू ले लिया, की ले लिया क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बनणगे, निर्देशांक की बनणगे, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी का मध्य बिंदु बन गया ना हुण अपना क्यू। तो अगेन तुसीं क्यू ला फार्मूला क्यू एक्स वाई किवें कड्डांगे आपां जी, ये सी पी आ गया। हुण क्यू मिड पॉइंट किहदा हैगा वा ए ते पी का, ठीक है। इत्थे कहांगे आपां क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए पी। तो फिर ए तो पी पॉइंट ही लवांगे ना, आप बी नहीं लेना हम बच्चे दे। हाँ जी, पहला इत्थे ला लो उवें फार्मूला -2 दे विच 0 ऐड करांगे आप इत्थे, -2 + 0/2, फिर आप 2 दे विच 5 ऐड करांगे, 2 + 5/2। ये आ गया अपने कोल कोऑर्डिनेट्स। -2 0 ऐड किया, -2 ही रह गया, डिवाइड किया 2 नाल, -1 आ गया। 5 ते 2 7, 7 नूं 2 नाल डिवाइड किया कितना बन गया 3.5 बन गए, 3.5। तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्यू भी आ गया। कितने पार्ट हो गए हुण, इक्वल 4 पार्ट्स करना सी आपां, इत्थे एक होर आपां ने आर ला लिया। देखो 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4। तो हुण आपां आर दे भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने आ गया। तो आर दे कोऑर्डिनेट्स तुसीं खुद पता करोगे पुत्र जी, ठीक है। ये तुहाडे लई छड्डिया मैं, तुसीं आप पता करना है, तुहाडे लई छड्डिया। क्लीयर हो गया ना, क्योंकि आर की मिड पॉइंट बनूगा अपने को हुण पी ते बी का। हुण किहड़े पॉइंट लवांगे आपां, आर इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो पी ते बी पॉइंट लैके तुसीं मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो, यू विल गैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। तुहानूं आर दे निर्देशांक पता लग जाणगे, ठीक है पुत्र जी। तुसीं अपने आप ट्राई करना है। सो वीडियो नूं पुत्र जी लाइक कर लो, ठीक है, और वध तो वध शेयर कर लो नाल दे बच्चों नूं। लास्ट क्वेश्चन अपना रह गया, देखते हैं आप लास्ट 10th क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन अपने को है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि सम चतुर्भुज का खेत्रफल पता करना है। अपन उहदे शिखर दिते हुए हैं, चारों शिखर। इत्थे ऑर्डर ध्यान च रखना, तुसीं जिवें चारों पॉइंट्स तुहानूं गिवन है उवें आपां अरेंज करने, पहले नूं पहला बी, फिर सी एंड डी, वही ऑर्डर रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपां ने सही निकलेगा आंसर, अदरवाइज गलत आ जाएगा। हुण पता करना आपां सम चतुर्भुज का खेत्रफल। तो सम चतुर्भुज के खेत्रफल के तुसीं हुण तक 2 फार्मूले पढ़े हैगे आ। तो किहड़े फार्मूले हुंदे अपने कोले, पहला फार्मूला हुंदा हैगा आधार गुणा शिखर लंब, आधार गुणा शिखर लंब। हुण इत्थे आधार तो तुहानूं मिल जू, चलो तुसीं 270 ला के पता कर लोगे। तो शिखर लंब पता करना औखा फिलहाल तुहानूं इत्थे, ठीक है। इत्थे एक फार्मूला होर हुंदा अपने कोले, वो की हुंदा हैगा, तुहानूं इत्थे हिंट भी दिता गया क्वेश्चन दे विच, दैट इज़ की हैगा 1/2 गुणा पहला विकर्ण
विकर्ण गुणा की है दूजा विकर्ण, यानी कि दोनों डायगनल्स आप लिख सकते हैं इनू हाफ ऑफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। डायगनल मतलब दोनों विकर्णां दे गुणनफल ले लिया, उन्होंने हाफ कर दो तो तुहाडे कोल एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, समचतुर्भुज का खेत्रफल आ जाएगा। यानी आपां नूं की चाहिए, सिर्फ डायगनल ही चाहिए ना, तो डायगनल दोनों की है, डायगनल पहला डायगनल बन गया AC, की बन गया AC। पहला तुसीं AC की लेंथ फाइंड करनी है, हुण इत्थे हुण विभाजन सूत्र की जरूरत नहीं, लेंथ किवें फाइंड करते हैं आप डिस्टेंस फार्मूले नाल, AC फाइंड कर लो पहला। AC इज इक्वल टू कितना बन जाएगा अपने कोल, तो फार्मूला इत्थे की बन गया पहला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ किहड़े AC ते BD, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करना है। ये फाइंड करने लिए अपने AC ते BD चाहिए, पहला आप फाइंड करते हैं AC। हाँ जी, AC ते डिस्टेंस फार्मूला लाओ, की बनेगा AC डिस्टेंस फार्मूला रिवाइज कर लो फटाफट, की सीगा x2 - x1, पहला दूजे x विचों पहला x घटाना जी, ठीक है, यानी कि -1 विचों -3 करना अपने, -1 -3 का स्क्वायर, फिर आप दूजे y दे विचों पहला y यानी 4 चों 0 घटाना, ठीक है जी। सॉल्व कर लो, -1 -3 बन गया -4 का स्क्वायर, तो 4 - 0 भी 4 ही रह गया का स्क्वायर। हाँ जी, आ गया अपने कोल 16, तो वह भी 16 आ गया, 16 16 बन गए 32, स्क्वायर रूट 32 बन गया। तो तुसीं इहनूं फिलहाल सॉल्व करना तो कर लो, 32 दे विच तुहाडे कोल बन गए 5 2 वारी 2 5 वारी, ठीक है। इन्हूं फैक्टराइज कर लिया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। जिहड़ा पेयर बन गया वो बाहर आ जाता हुंदा अपने कोले, किन्ने पेयर बने, 1 ते 2 पेयर बन गए ना, जिहड़ा कल्ला रह गया वो विच ही रह जाऊगा। तो आंसर आ गया अपने कोले 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 4 स्क्वायर रूट 2 जिहड़ा हैगा यूनिट्स अपने कोले, इहदी लेंथ आ गई AC की, ठीक है जी। फिर फाइंड करना अपने BD की लेंथ फाइंड कर लो, डिस्टेंस फार्मूला B ते D डायगनल, B ते D नूं ज्वाइन कर लो, ए दी लेंथ फाइंड कर लो, B ते D पॉइंट लेने अपने। हाँ जी, इत्थे x वाले की है अपने को -2 -4 आ जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा फिर अपने को -1 ते -5 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आप, सॉल्व कर लो, -2 ते -4 -6 स्क्वायर बन गया, -1 ते -5 भी -6 स्क्वायर बन गया, 10 स्क्वायर रूट। हाँ जी, 6 का स्क्वायर 36 ये बन गए, तो ये बन गया अपने कोले 36 36 72 बन गए। तो 72 नूं भी तुसीं जिहड़ा हैगा तोड़ सकते हैं, तो फैक्टराइज करके इहनूं कितना बन जाएगा अपने कोल। हाँ जी, दसो फैक्टर बना लो ये तुसीं, 2 दूनी 4 4 ते 4 दूनी 8 या 24 या 72, ठीक है। तुसीं लिख के भी बना सकते हैं, तो जिहड़े जिहड़े पेयर बन गए वो बाहर कढ़ लो, जिहड़ा कलर रह गया विच रह जाएगा। एक पेयर आ बन गया, एक पेयर 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, ठीक है। 2 3 6 आ कलर रह गया विच रह गया, 2 3 6 वर्गमूल 2 यूनिट्स की आ गया, इसकी लेंथ आ गई अपने को BD की है। सो अपना फार्मूला की सीगा फ्रॉम 1, तुसीं लिख लो इत्थे फ्रॉम 1, फार्मूला सीगा हाफ ऑफ AC इंटू BD, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया अपने को हाफ ऑफ AC अपने कढ़िया 4 वर्गमूल 2, BD अपने कढ़िया 6 वर्गमूल 2, ठीक है जी। तो 2 नाला कट्टिया गया, तो आंसर कितना आ गया 6 दूनी तो 12 बार बन गए, तो वर्गमूल 2 तो वर्गमूल का कितना बन गया वर्गमूल 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होंदा 2, तो कितना बन गया 12 दूना, फिर अपने को 24 एरिया कढ़िया ना, आप एरिया लिखते हैं आप स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि वर्ग इकाइयाँ, ठीक है। एरिया हमेशा वर्गों के लिखा जाता, स्क्वायर लिखा जाता, इन्हों आप लिखते 24 स्क्वायर यूनिट्स। समझ लग गई भाई, दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। ये सी अपना लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर वाला, ठीक है। समझ लग गई सारे क्वेश्चन की पुत्र जी। सो जे कुछ ना पता लगे तो कमेंट बॉक्स कमेंट करो, ठीक है, मैं दोबारा समझा देंगे। सो वीडियो में पुत्र जी वध तो वध लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। थोड़े लाइक्स थोड़े शेयर सारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। सो वध तो वध सीखना पुत्र जी आप, ठीक है, और हंसते वसते रहो पुत्र, खेडते रहो, ठीक है, और बैटर लर्निंग करते रहो। प्रैक्टिस तो जी है वध तो वध फायदेमंद है तुहाडे लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
ਸੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਤਖ ਕਰਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।